Good evening, everyone. First of all, like she said, it's very surreal to be here post-COVID, but very nice to be again here with all of you in this wonderful press conference. ऐसी ही बननी चाहिए फिल्में और ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए. 2 साल का withdrawal था, but thankfully we are back. So this is a very special evening. I think इतने horror films बना के ना I've started seeing things now. So I think I've become a believer. And Jay has also made me a believer. Really? But आप ये पूछ रही हैं कि भूतों को लेकर मुझे विश्वास है कि नहीं? जी हाँ. नहीं होता तो ऐसी फिल्में नहीं बनाता मैं. I would say I'm a bit 50-50. I'm not arrogant enough to say that ghosts don't exist because I don't know. It's the age-old thing that if you've not seen it doesn't mean it doesn't exist. I hope they exist for the sake of my films. So I'm kind of torn. I'm a little skeptical. At the same time, I want to be a believer. But till then, till we find out if ghosts exist, we'll enjoy films like The Book. You can enjoy ghosts in your living room. Ghosts in our living room. That's quite the tagline, isn't it? It's quite a cool one, especially because we're going to watch this in the comfort of our homes. All right, I'm going to pass this on to the lovely Nikita. Nikita, let me tell this to you. Today, when I was speaking to Imran in the afternoon for an interview, he said, you should meet Nikita because I confessed to him. I said, I have never watched a horror film in my life. सबसे बड़ी डरपोक मैं हूँ और मुझसे नहीं. And he said, immediately said, but you should meet Nikita. How does somebody actually have that mental makeup to go in and say, I want to do a film like this? Please explain to me, how did you do this? Honestly, I completely relate to you when you say that you get very scared of watching horror films because I have been exactly the same. But contrary to what a lot of people might think, doing a horror film doesn't scare you that much. Yeah, so even while I was shooting for it, I never got scared on sets for real. It was only post-shooting when it kind of kicks in. And Jaisar and Imran kind of made sure that even if I was doing fine, they used to make sure that they tell me some spooky things that are happening around. So I do get scared when I go back to the hotel after we used to shoot. So yeah, so at least the shooting part was not a stress. And also this film, I think, has made me a little brave than what I was before. Yeah. जब इन्होंने कहा कि पूछा कि क्या मैंने भूत देखा है, मैंने एक्चुअली देखा नहीं सुना है. जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मॉम एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थी और वो मुझे चर्च लेके गई थी एक सर्मन के लिए. और उस दिन फॉर सम रीज़न सर्मन नहीं हो पाया. हमें बताया गया था बाहर कि अंदर एक एक्सोसिज्म परफॉर्म हो रहा था. जो प्रीस्ट हैं उस चर्च के, जो हेड प्रीस्ट हैं, एक एक्सोसिज्म परफॉर्म कर रहे हैं. आई थिंक मैं 7 या 8 साल का होऊंगा तभी. और मुझे आज भी वो आवाज़ याद है. मैं ये नहीं कह सकता हूँ दावे से कि वो आदमी था या औरत थी, लेकिन बहुत ही डरावनी आवाज़ थी. इट वाज अ पर्सन इन पेन. अभी लॉजिकली साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि ये क्या मजाक है, ये probably it is some kind of deranged mind or a fractured mind और जो भी. लेकिन exorcisms होते हैं और ये एक तरह से एक बहुत ही डीप इम्प्रिंट छोड़ गया है उस उम्र से. तो मैंने हमेशा इसलिए जब इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि आई ऑसिलेट बिटवीन स्केप्टिसिज्म और बिलीफ. मैंने असलियत में कभी भूत देखा नहीं है. देखना चाहता हूँ. आई डेफिनेटली वांट टू. आई एम अ मेजर हॉरर फिल्म फ्रीक एंड आई ऑल्सो गॉन फॉर गोस्ट हंटिंग ट्रिप. वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक कुछ दिखा नहीं वहाँ पे. तो अनफॉर्चुनेटली ये गोवा में, राइट डाउन इन द साउथ ऑफ गोवा, एक डिलैपिडेटेड होटल है. कुछ 30 या 40 साल पुराना होटल है. तो एक एक्चुअली एक इंटीग्रेशन था उस वक्त, एक प्रमोशनल का इंटीग्रेशन था. वी वर एज कंटेस्टेंट्स द एक्टर्स. तो हमें एक बैकपैक दिया गया था. 2 कैमरा थे. एक फर्स्ट पर्सन शूट कर रहा था और एक हमारा रिएक्शन शूट कर रहा था. और हम सबको विसल्स दिए गए थे. किसी को भी डर लगे तो कैमरा क्रू 1 किलोमीटर दूर है, आप विसल सीटी बजा दो, उनको 10 मिनट लगेंगे आने के लिए. तो द सिचुएशन वाज वेरी स्कैरी. और मैं क्या, अभी तो मैं फंस गया था ना.
हीरो हूँ, तो ऐसा ऐसा तो नहीं सकता है ना कि मैं मेरी फट रही है वहाँ पे। तो मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली आई हैड टू प्ले द हीरो। सो बट इट वाज द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। वो जो 4 घंटे थे मेरे, इट वाज क्वाइट हेल, बट आई डिडंट सी एनीथिंग। आई डिड सी समथिंग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर वो भूत नहीं था। Hi Imran, hi. Here, Kalpesh Rajgopal. She wants to, yeah. सो नहीं, इमरान ने तो बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो हुए हैं। मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने सुना बहुत है, बहुत सी कहानियाँ सुनी है लोगों से जिन्होंने फर्स्ट हैंड ऐसी चीज़ें देखी हैं, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट माई सेल्फ। उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर है इस चीज़ को लेकर, बिना देखे हुए बहुत डर है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं हॉरर फिल्म से इतना ज़्यादा डरती हूँ। हाय इमरान। Hi Imran, this year Kalpesh Rajgopal from Maharashtra Times. इसके पहले आपने बार्ड ऑफ ब्लड एज अ वेब सीरीज स्टार्ट किया था, वो रिलीज हुआ। ये आपका पहला OTT फिल्म है। ये जो नई जर्नी आपने शुरू की है, OTT की जर्नी है, इस जर्नी को किस तरह देखते हो आप? आई थिंक हम बहुत खुश हैं कि इस फिल्म को ये एवेन्यू, ये रास्ता मिल रहा है शोकेस करने का। आई थिंक हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि थिएट्रिकल, ओरिजिनल, OTT। हम इस फिल्म के साथ ख़ास करके बहुत खुश हैं क्योंकि ये पर तो अमेज़ॉन की जो रीच है, इट गोज़ टू 240 कंट्रीज़। और इस थीमेटिकली जिस तरह, अगर आपने ये हॉरर फिल्में देखी हैं यहाँ पे, आई डोंट नो इफ़ यू आर अ हॉरर फिल्म बफ, तो ये एक बहुत ही एक तरह से इंटरनेशनली एक तरह से शूट किया गया। इसके एस्थेटिक्स बहुत अलग हैं दूसरे हॉरर फिल्मों से। तो हमारा मानना है कि ऑल्सो जिस तरह जैन ने जूइश कल्चर को, उनके बिलीव्स, ऑकल्ट, सुपरनैचुरल को इस फिल्म में इंटीग्रेट किया है बहुत ही खूबसूरती से। हमें लगा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए हमें लगा कि हम इस फिल्म के लिए ये रूट इस्तेमाल करें जो OTT का है। एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। फिल्म 29 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, हैलोवीन को। एक बहुत ही, कहते हैं कि गोस्ट के लिए बहुत स्पेशस दिन है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो डिफ़ाइन करती है हैलोवीन को। आई थिंक इट्स एप्ट वॉच फॉर दैट वीकेंड। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप डरोगे, बहुत डरोगे ये फिल्म देखने के बाद। इमरान, जब आपने विक्रम जी के साथ स्टार्ट की थी फिल्म, तब जो मेन स्ट्रीम के हीरोज़ हैं वो जल्दी सुपरनैचुरल सब्जेक्ट पे अपना कंसेंट नहीं देते थे, लेकिन तब भी आपने हिम्मत दिखाई और उस समय इस जॉनर को आगे बढ़ाया। और अब जब ये जो सुपरनैचुरल है उसमें कॉमेडी का घालमेल हो गया है, जैसे स्त्री या रूही, तब आपने हिम्मत ये दिखाई कि आपने एक बहुत सीरियस किस्म के सब्जेक्ट को, जिसमें काफ़ी रिसर्च करके आई थिंक इन्होंने फिल्म बनाई है, उसमें काम करने की हिम्मत दिखाई। तो ये दोनों चीज़ आपने किस तरह से थोड़ा पागल था तभी, अभी भी थोड़ा पागल हूँ। तो जनरली जो लोग कहते हैं ना कि ये करो, तो मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ। मेरी सोच एक तरह से थोड़ी ऑफ है। और बचपन से मैं हॉरर फिल्में देखता आ रहा हूँ। जब विक्रम ने मुझे फिल्म का ऑफ़र दिया था, तभी तो पहली फिल्म मोहित ने डायरेक्ट की थी, राज 2, उसमें मैंने काम किया था। फिर एक थी डायन आई, राज 3, राज 4। इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि ये जॉनर मेरे लिए बहुत ही मैं बहुत पसंद करता हूँ इसको। और जहाँ तक कि अभी एक वेव चला है हॉरर कॉमेडीज़ का, दैट विल ऑलवेज बी अ सब जॉनर टू दिस। दिस इज़ द मदर जॉनर। अगर आप कहें कि हॉरर प्राइमरीली किस तरह कंज्यूम होना चाहिए, वो ये है, वो इसके बच्चे हैं हॉरर कॉमेडी। तो इट्स ग्रेट दैट वो भी लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब तक हमारे देश में ये जॉनर ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ज़्यादातर फिल्में नहीं बनती हैं, शायद ज़्यादातर स्टार्स इस जॉनर को समझते नहीं हैं, तो वो अपना कंसेंट नहीं देते हैं, तो बजट्स उतने नहीं होते हैं उन फिल्मों के लिए। बजट्स नहीं होते हैं तो एस्थेटिक्स क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि और स्टार्स हॉरर फिल्में करें, क्योंकि ये इस जॉनर का सक्सेस रेशियो बहुत बड़ा है। बहुत चंद फिल्में रिलीज़ हुई हैं, लेकिन जब भी फिल्म रिलीज़ होती है हॉरर में, वो कमाल का एक तरह से बिजनेस होता है हॉरर फिल्मों का। ज़्यादा फिल्में रिलीज़ नहीं होती है, लेकिन बिजनेस कमाल का होता है।
आप फिल्मी भूतों के बारे में बात कर रहे हो हाँ क्योंकि जी। असली ज़िंदगी में तो मैंने देखा नहीं है क्यूट भूत या डरावना भूत। भूत तो एक्चुअली डरावना ही होता है, क्यूट भूत मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा है। भूतनाथ। एक्चुअली सॉरी, भूतनाथ का भूत बहुत क्यूट। नो आई एक्चुअली कैस्पर। कैस्पर वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ क्यूट घोस्ट। सबसे डरावना भूत होगा द एक्सोसिस्ट, द ओरिजिनल, आई थिंक 1977। आप उदास हैं, निराश हैं इस जवाब के साथ? आप ऐसा नहीं, आपको मैं- हिंदी फिल्म चाहिए? डर लगता आपका है। डर लग रहा है आपको? और आपको कौन सा भूत चाहिए था तीसरा? जो आपको एज एन एक्टर बहुत इम्प्रेस करके गया हो वो। आई थिंक एज अ फिल्म यही है, द एक्सोसिस्ट, द ओमन, साइलेंस ऑफ द लैम्स, एंथनी हॉपकिंस, हैनिबल लेक्टर, वो मेरे फेवरेट है। भूत नहीं है बट इट वाज अ हॉरर फिल्म इन इट्स ओन राइट। शुक्रिया। The aesthetics of this film, the way this film has been made, is very different. हमने यहाँ पे कोई references इस्तेमाल नहीं किए हैं. It's you talk about relatability to the Indian audience. Yeah. I think this couple story is very relatable. The characters are very relatable. Of course, जो performers भी हमने इसमें डाले हैं, जो कि जय ने cast किए हैं, fantastic performers like Manav, Denzel, Imad, Darshana, a lot of other performers who have added great value to the film and made it more credible. I don't think we can really compare this to any particular film. It's a film in itself. You should enjoy it. It's got its own individual print. और you'll know जब आप film देखेंगे. Did it leave any impact on you after shooting and all? Because lots of these things do impact you. It's maybe sometimes I used to take scenes back with me. I've had a couple of nightmares in Mauritius, but I generally am an actor who switches on and switches off very easily. I don't take the stresses and the work pressures of the set back home. But ऐसी फिल्में generally, and it's very taxing working in a horror film क्योंकि emotionally draining होती हैं. Because whenever there's such scenes, it demands a lot. It's very intensive. तो definitely कभी-कभार मैं ये scenes वापस घर लेके जाता था and yeah, had a couple of nightmares. Thank you. तो नहीं, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मिस नहीं करेंगी ओके क्योंकि यहाँ आपको लगेगा कि यार अच्छा किया इन लोगों ने गाने नहीं डाले नहीं हम लोग आपके क्योंकि गाने मिस मेरा कर रहे हैं। मेरा आपको लगेगा कि यार मज़ा शायद खत्म हो किरकिरा हो जाता। गानों के लिए एट द मोमेंट आप लुट गए एंजॉय कीजिए। ओके YouTube पे मिलेगा आपको, अच्छा अच्छा सावन नहीं, पे भी और डाउनलोड कर सकती हैं आप। आगे से लेकिन आप जरा ध्यान रखिएगा हम लोग नहीं डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, I love it. नेक्स्ट टाइम एक म्यूजिकल हॉरर फिल्म बनाऊंगा मैं अगले साल Whoa! यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये आया पक्का You know what, Imran, I just want to tell you this, that maybe we met after so long, as media and as, guests on the stage today. But this vibe is something I can tell you, it's palpable, this feeling of love. So how does that make you feel? I want to close today's Q&A with that. How does it feel to actually see your friends from the media today face to face? It feels incomplete when you don't have this, when you don't have that feeling. You don't have the feeling of a film release without a press conference and without a proper film promotional plan, right? तो इसमें वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई and इंशाल्लाह ये आने वाले कल में ऐसी बरकरार रहें और जैसे कि हम रेडियो पे कहते हैं ना, फिर वही दीवानगी. So this is that दीवानगी that we're bringing to you. और Ladies and hopefully gentlemen, फिर yeah. से मुलाकात होगी Yeah, फिर से अगले मुलाकात साल। होगी. Yeah. जी। 29th of October, Prime Video. Don't forget Dibak. And thank you so much for joining us today, ladies and gentlemen. It's been a pleasure being here on stage with you. Once again, I give you the cast and the wonderful crew of Dibuk. Please give them a big hand, ladies and gentlemen. दोनों हाथों से, with all that love. Come on. Yes. Thank you.